सत श्री अकाल, दिस इज लवप्रीत कौर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। अपनी सीरीज चल रही है पैसिव वॉइस ਤੇ मेरे दो वीडियोस इन्हां ते बनिया हुई ने। पहली वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ कि नीड की है पैसिव वॉइस ਦੀ, मतलब ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ पैसिव वॉइस ਨੂੰ यूज़ कर सकते हैं अपनी राइटिंग ਦੇ ਵਿੱਚ, अपनी स्पीकिंग ਦੇ ਵਿੱਚ। एंड मेरी सैकेंड वीडियो पैसिव वॉइस ਤੇ बनी हुई है जिस ਦੇ ਵਿੱਚ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆਗਾ कि ਕਿਹੜੇ-ਕਿਹੜੇ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਸਿव वॉइस ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ एंड जनरल रूल्स की आ एक्टिव तो पैसिव ਦੇ ਵਿੱਚ चेंज करने ਲਈ। एंड ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ कि सिंपल प्रेजेंट टेंसेस ਨੂੰ एंड सिंपल पास्ट टेंसेस ਨੂੰ एंड सिंपल फ्यूचर टेंसेस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ एक्टिव तो पैसिव ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖੋ, ਬਿਕੋਜ਼ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਆਈ ਬਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਟੈਂਸਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਫਰੋਮ ਐਕਟਿਵ ਟੂ ਪੈਸਿਵ। एंड जिसने भी मेरा चैनल ਨੂੰ हाल तक सबसक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी जल्दी चैनल ਨੂੰ सबसक्राइब कर लो एंड बैल आइकन ਨੂੰ भी प्रेस कर दो ताकि मेरी वीडियोज़ की अपडेशन ਤੁਹਾਡੇ तक पहुँचती रहे। हाँ जी, आप स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। एज यू नो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस की हुंदा जो प्रेजेंट दे विच चल रहा है। लाइक मैं वीडियो बना रही हाँ, ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ। ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਸ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਆ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਲਗਾਇਆ। ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਐਕਟਿਵ ਵਾਲੇ 'ਚ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਐਕਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਆ ਗਿਆ, ਆਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਮ ਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਟਿਵ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਤੋਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਦੀ ਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਡੀਪਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਕਟਿਵ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੇਂਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਾਏ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਣਾ? ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਸੇਮ ਹੀ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹੀ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਬੀਇੰਗ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਆਬਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਅ ਲੈਟਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅ ਲੈਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਇਜ਼ ਲੱਗੂ, ਐਮ ਲੱਗੂ ਜਾਂ ਆਰ ਲੱਗੂ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗੂਗਾ ਉਹ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਆਬਜੈਕਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੱਗੂਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਜ਼ ਆਪਾਂ ਸਿੰਗੂਲਰ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ, ਐਮ ਆਪਾਂ ਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ ਐਂਡ ਆਰ ਆਪਾਂ ਯੂ ਐਂਡ ਪਲੂਰਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਅ ਲੈਟਰ ਇੱਥੇ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਜ਼ ਲੱਗ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਬੀਇੰਗ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫਾਰਮ। ਵਰਬ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਰਾਈਟ ਵਰਬ ਹੈ, ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਰਬ ਥਰਡ ਕੀ ਆ? ਰਿਟਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਾਏ ਆ ਜੂਗਾ, ਦੈਨ ਸਬਜੈਕਟ। ਸਬਜੈਕਟ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਦਾ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਮੀ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਜੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੀਨਿੰਗ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਮੇਰੇ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਸ ਪੱਤਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮਤਲਬ ਚੇਂਜਿਸ ਆ ਗਈਆਂ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਅ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਫੋਕਸ ਆਈ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਸੀ? ਸਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ, ਇੱਥੇ ਨੋਟ ਵਰਡ ਐਡ ਹੋਇਆ, ਦੈਨ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ, ਦੈਨ ਆਬਜੈਕਟ ਐਂਡ ਫੁੱਲ ਸਟਾਪ। ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕੀ ਬਣ ਜੂ? ਆਈ ਐਮ ਨੋਟ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਲੈਟਰ, है ना।
एम तो बाद नॉट वर्ड ऐड हो गया, बाकी सारा एज इट इज़ ही आ। हुण देखो इहनूं पैसिव दे विच आपां चेंज किवें करना गा, ठीक है। ਇਹਦਾ मीनिंग की है, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा हाँ, ठीक है। लिखण की लोड़ नहीं है, मैनूं पंजाबी तुहानूं दस चुकी आ। हुण देखो इहनूं आपां पैसिव दे विच चेंज करन लई की रूल बनाउणे आ। ऑब्जैक्ट अगे आ जाऊगा, सबजैक्ट पिछे इत्थे बाय आ जाऊगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जूगी। हमेशा कंटीन्यूअस दे विच बीइंग ऐड हो जाऊगा, इज एम आर आऊगा, कंटीन्यूअस है, बस इत्थे नॉट वर्ड ऐड हो जाऊगा। बाकी सारा एज इट इज़, इत्थे नॉट वर्ड ऐड हो गया, बाकी सारा एवें ही आ गया। तो हुण देखो इहनूं किवें लिखांगे आपां। अ लैटर पहला आ जाऊगा, अ लैटर। नैक्सट इज बस इत्थे नॉट वर्ड ऐड हो गया, नॉट बीइंग रिटन बाय मी, ठीक है। एक पत्र मेरे द्वारा नहीं लिखिया जा रहा है, बस इत्थे नहीं वर्ड ऐड हो गया ये वाली सेंटेंस दे विच, बाकी सारा सेम ही आ। नैक्सट इज क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आपां किवें लिखदे आ। इंट्रोगेटिव दे विच आपां रूल किवें तुसीं देखिआगा लास्ट वीडियो दे विच कि आपां किवें लिखिआ, जिहड़ी हैल्पिंग वर्ब है वो अगे आ जांदी आ इज एम आर एक्टिव दे विच, ठीक है। उस तो बाद सबजैक्ट लैके आउणे आ, फिर वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, फिर ऑब्जैक्ट एंड क्वेश्चन मार्क, आ सारी चीज़ अगे आ गई। दैन बाकी सारा कुछ पिछे चल गया, क्वेश्चन मार्क आ गया। तो देखो एक्टिव दे विच इहदी इंग्लिश की बनी आ, स्टेटमेंट किवें बनी आ। सबजैक्ट आई है तो उहदे तो स्टार्टिंग उहदे नाल आई दे नाल एम लगूगा, MI, दैन वर्ब राइटिंग अ लैटर, ये बन गया एक्टिव दे विच। हुण देखना आपां पैसिव दे विच इहनूं किवें चेंज करना गा। पैसिव दे विच चेंज करन लई की हुंदा गा, जिहड़ा अपने कोल हैल्पिंग वर्ब है वो अगे आ जूगी, ਇਹਦੇ 'ਚ हैल्पिंग वर्ब सेम ही रहिंदी आ, इज एम आर अगे आ गया, फिर आपां ऑब्जैक्ट पहलां लिखदे आ, है ना, एंड ते आपां सबजैक्ट लिखदे आ। ऑब्जैक्ट तो बाद इत्थे बीइंग वर्ड ऐड हो जाऊगा, ठीक है। बीइंग तो बाद की आ जाऊगा वर्ब दी थर्ड फॉर्म, दैन इत्थे बाय आ जाऊगा सबजैक्ट, दैन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। कोई फर्क नहीं पिया, बस इत्थे जिहड़ा बीइंग सीगा वो इत्थे ही रहा, जिहड़ा ऑब्जैक्ट है वो इत्थे हो गया, जिहड़ी हैल्पिंग वर्ब है वो अगे आ गई, बाकी सारा एवें ही आ पिछों, ठीक है। तो देखो हुण इहनूं आपां चेंज किवें करना गा। सब तो पहलां आपां की ऑब्जैक्ट के अकॉर्डिंग इन्हां दे विचों चूज करना। ऑब्जैक्ट इत्थे की आ अ लैटर सिंगूलर है, तो सिंगूलर लई इज वर्ड इत्थों चूज हो गया, इज, दैन ऑब्जैक्ट डैट इज़ अ लैटर, दैन बीइंग वर्ड आ जाऊगा, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म डैट इज़ रिटन, दैन बाय मी एंड क्वेश्चन मार्क। नैक्सट इज पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हुंदा, जो पास्ट दे विच कोई चीज़ हो रही होवे, लाइक मैं खाना खा रहा सी, मैं जा रहा सी, मैं कर रहा सी, ऐदां दी है, ठीक है। तो जिवें इहदे च आ जाऊगा मैं पत्र लिख रहा सी, ठीक है। रहा वर्ड ऐड हो जाऊगा, नाल सी अपने कोल पास्ट लई आ जाऊगा। एक्टिव नूं इंग्लिश दे विच लिखण दा रूल की आ, पास्ट कंटीन्यूअस दा सब तो पहला सबजैक्ट, दैन वॉज वर, दैन वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING, दैन ऑब्जैक्ट एंड फुल स्टॉप, है ना। तो मैं पत्र लिख रहा सी नूं की बन जूगा, इत्थे एक लगा लो, मैं एक पत्र लिख रहा सी, आई वॉज राइटिंग अ लैटर, ठीक है। हुण देखो आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज किवें करना गा। पैसिव दे विच चेंज करन लई ऑब्जैक्ट है जिहड़ा अगे आ जाऊगा, सबजैक्ट अपने कोल पिछे, सबजैक्ट तो पहलां बाय आ जाऊगा, इत्थे वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इत्थे रह गया कि चूज़ की करना। तुहानूं दस्सिआ कि कंटीन्यूअस दे वेले हैल्पिंग वर्ब सेम ही आउंदी आ पैसिव दे वेले, तो इत्थे भी वॉज वर ही आ जाऊगा, बस एक वर्ड ऐड हो जाता डैट इज़ बीइंग। हमेशा कंटीन्यूअस दे विच बीइंग ऐड हुंदा ही आ, ठीक है। तो ये इहदा रूल बन गया। हुण देखो इहनूं आपां इंग्लिश दे विच किवें लिखांगे। देखो इत्थे जिहड़ी ऑब्जैक्ट है अ लैटर है, तो अ लैटर अगे आ गया, ठीक है। अ लैटर सिंगूलर है, तो सिंगूलर नाल वॉज आ गया। मैं बहुत बार दस चुकी कि वॉज किस नाल आउंदा, वर किहदे नाल आउंदा। जे मेरी पुरानी वीडियोज़ देखिया होणगियां तो तुहानूं बिल्कुल क्लीयर होऊगा, ठीक है। वॉज आपां सिंगूलर नाल एंड वर्ड आपां प्लूरल नाल लगाउने आ, तो अ लैटर सिंगूलर है, उहदे नाल वॉज आ गया। दैन आपां बीइंग लगाउणा गा, दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म डैट इज़ रिटन, दैन बाय आई दा की बन जू मी, फुल स्टॉप।
ठीक है। अ लैटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी, पंजाबी च इहनूं की कह सकते हैं, एक पत्र मेरे द्वारा लिखिया जा रहा सी। ठीक है जी। नैक्सट इज नैगेटिव स्टेटमेंट, आपां किवें लिखदे आ, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा सी। ठीक है, उहनूं आपां रूल किवें बनाया होया लिखण लई, सबजैक्ट वॉज वर दैन इत्थे नॉट, कुछ नहीं आ, बस इत्थे नॉट वर्ड ऐड हो जाता है वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म दे नाल ING दैन ऑब्जैक्ट एंड सॉरी फुल स्टॉप, लाइक आई वॉज नॉट राइटिंग अ लैटर, मैं एक पत्र नहीं लिख रहा सी। ठीक है, ए दी पंजाबी बन गई। हुण आपां देखना कि इहनूं आपां पैसिव दे विच चेंज किवें करना है। आ हैगी है एक्टिव फॉर्म, आपां पैसिव दे विच देखना। पैसिव दे विच चेंज करने लई ऑब्जैक्ट पहला आ जाऊगा, सबजैक्ट पिछे इहदे कोल बाय आ जाऊगा, इहदे कोल वर्ब दी थर्ड फॉर्म आ गई, हर एक कंटीन्यूअस दे विच बीइंग वर्ड ऐड हो जाता, हैल्पिंग वर्ब सेम ही रहिंदी है, तो इत्थे वॉज वर ही रहूगा। ठीक है, ये हो गया दा रूल। तो सब तो पहला की आ जो ऑब्जैक्ट इत्थे की आ, अ लैटर दे नाल वॉज आ गया, ओ सॉरी नॉट सीगा, इत्थे नॉट पाउणा रह गया। ठीक है, नैगेटिव स्टेटमेंट आप कर रहे हैं ना, तो नॉट रह गया सी, नॉट अपने को वॉज वर्ड तो बाद आऊगा। ठीक है, इस तो बाद बीइंग तो पहला, तो अ लैटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी, बस कोई भी फर्क नहीं आ, इत्थे वॉज बीइंग रिटन बाय मी सी, इत्थे वॉज नॉट बीइंग रिटन बाय मी आ गया। ठीक है, ये होगी नैगेटिव स्टेटमेंट। नैक्सट इज इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट, क्वेश्चन वाली स्टेटमेंट आप किमें लिखते हैं, एक्टिव दे विच किमें लिखते सी, हैल्पिंग वर्ब पहला आ गई, वॉज वर दैन सबजैक्ट दैन सारा पिछे ओमी, है ना, कोई फर्क नहीं आ, वॉज वर पहला आ गया दैन सबजैक्ट इत्थे हो गया दैन ओमी। लाइक आप स्टेटमेंट किमें लिखते सीगे, वॉज आई राइटिंग अ लैटर, की मैं पत्र लिख रहा सी, वॉज सबजैक्ट इज आई राइटिंग अ लैटर क्वेश्चन मार्क। हुण देखना आपां इहनूं पैसिव दे विच चेंज किवें करना है। पैसिव दे विच चेंज करन लई भी क्वेश्चन लई पहला हैल्पिंग वर्ब लगूगी, हैल्पिंग वर्ब आपां इत्थे की लगा रहे हैं, वॉज वर ही लगा रहे हैं, उस तो बाद सबजैक्ट दैन अपने सॉरी इत्थे ऑब्जैक्ट दैन अपने कोल बीइंग वर्ड आ जाऊगा, ऑब्जैक्ट पहला आउंदा है ना, सबजैक्ट पिछे आउंदा, इत्थे बाय आ जाऊगा दैन वर्ब दी थर्ड फॉर्म, इत्थे बीइंग वर्ड ऐड हो गया। ठीक है, तो अगे क्वेश्चन मार्क एंड पे आ जाऊगा। तो हुण देखो आप इहनूं चेंज किवें कर सकते हैं पैसिव दे विच, सब तो पहला ऑब्जैक्ट के अकॉर्डिंग इन्हां दा चूज होगा, ऑब्जैक्ट अ लैटर है तो वॉज आ गया, वॉज अ लैटर। नैक्सट इज बीइंग वर्ब इत्थे किहड़ी आ, राइट, जिहदी थर्ड फॉर्म हैगी आ रिटन बाय मी दैन क्वेश्चन मार्क, कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखिया जा रहा सी, क्वेश्चन पूछा। ठीक है।